see screen. Aisha, can you guide him? He's unable to see his screen, but we can. Okay, Aisha is. I don't. Hmm. I think you need to move back towards team and you'll be able to see the screen because we can see your screen. Are you able to see? We can see the first screen of yours, resume and cover letter. We are not on the slideshow, but on the PowerPoint itself. Basically, that's what I want to fix, but I'm not able to see my screen. Let me share a screenshot with you, Yusra. So if you can guide me with that. Yeah, that would be great if you could share a screenshot with us and we'll guide you accordingly. So I've shared a screenshot. Basically, this is what I'm seeing. Just give me a minute and I'll look into it. All right, so Huzefa has also joined us. We are going to start in a minute. Okay, Usman, if you click on the view option, that's there. It will be on the hover above you. It's a square grid. Yeah. Over there, you can change your view setting. Right now, it's on speaker mode. So that's so you can only see yourself and Yusra because you two are speaking. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Okay, so let's start with the brief introduction. Yeah, sure. Yeah. So first of all, we welcome you all to the online mentorship sessions. Today's topic is resume writing and cover letter development. We have two speakers with us. One is Mr. Umair Salim. He's a project manager at SB Electronics Engineering and Control. And then we have Josefa. He's founder of startup Discover 360, and he also works as customer success manager at VFairs. So now we'll leave the floor to Mr. Umair Salim so that he can officially start the session. Yeah. So hello everyone. So basically, just have given a brief introduction on myself as well. Sorry, I think you guys were there some background noise and I was traveling, so I'm not at the very best place for this. So basically, this session is mainly about the resume and cover letter writing. I'm not. I just want to you guys to give a brief introduction as to what you guys know about resume in terms that have you applied for jobs, have you created a LinkedIn account, so and what have been your experience in landing interviews as well? Because resume is mainly linked with landing interviews. That's what how you gauge the success of the resume, not with landing a position, but just landing the interview. So that I can basically guide the session towards what's actually going to help you and not repeat the things you all guys already know. So if you, I think there is a lot of distortion in my voice. Umair, yes, your voice is not very clear. Let me change my position then. All right.
Meanwhile, Josefa, can you start with your introduction, and then Umair can join later. Sure, yes, I can. Hello, everyone. Thank you for joining this session for the resume writing and cover letter writing. My brief introduction is that I'm a graduate of LUMS from batch of 2020, and after that, I have experience of working with several companies. First, it was Valencion, Middle East and South Asia as a technical sales engineer, and then after that, I worked with USAID for a year on the electric vehicles project, and now I am currently working as customer success manager in VFairs. Um, I have worked in two departments. First, it was project management, then it was the customer side. And beside that, I have also founded a company called Discover 360. It's basically a travel brand that you know resolves your travel queries for traveling abroad for different visa purposes and for different tours making it. And meanwhile, when Umair can join in, I can just quickly talk about the importance of resume in your early career. So let's say when you are just starting your senior year, you are just graduated. So first thing first, what do you do exactly? You start looking for the jobs, for the right jobs that you want to land in. So you have to tailor your CVs according to that. For example, there is a general trend of making a general CV for a bulk of the jobs, and then just start applying in a bulk. For example, everyone has just one single CV. It just says that for example, this is my name and this is my what I did, this is my CGPA, and then after that maybe some couple of society's experience, which is good to go with. But let's say if you are a business graduate. I think we lost the connection. Aisha, can you hear me? Yes, I can Can hear you you. guys hear me now? I think mentor Yes. got Yes, Umair, some can you internet please issues. continue? Yeah, sure. Sorry, I think Zappa is disconnected. Basically, what Zappa was saying is totally on point. With the issue over with jobs is like people basically create one resume or one cover letter and then try to like just spam it on every LinkedIn job opportunity. So, and I understand that based on my experience as well, basically, let me give my introduction as well. I'm an alumni from the batch of 2020, and the past 4 years, I'm working as a project manager. I have worked in three different sectors. I started my career in oil and gas sector, then I briefly worked in the IT sector. Right now, I am in engineering sector, and I was working as a project manager in all of those sectors. My degree is in my bachelor, basically major is in electrical engineering. So for the past 4 years, I've switched a job 3 times and applied for many jobs and got given many interviews. Some were good, some were bad. So basically, just to summarize that, uh, resumes are it's very difficult to tailor a resume for every job post. I can basically understand that. I have done that. It's very frustrating. You are like once for थोड़ी देर के लिए you are very enthusiastic कि यार अब तो मैंने करना ही है तो like फिर आप 10-15 jobs के लिए आप करते हो फिर आप like वापस डाउन हो जाते हो कि कितना ही मैं कब कितना ही एडिट करूं बार बार वर्ड में जाऊं उसको पीडीएफ में करूं उसको सबमिट करूं etc. So let me just like if the participants can give me a short description. You just need to tell me your name, what batch you are in, then just let me know if you have a LinkedIn account or not, and have you applied for jobs or internships or not. If this introduction, as I shared earlier, can help me see what's the level of the audience, so we can move forward from there. So if you guys can start from there. So, Umar, can I start? Yeah, sure. Sure. So, my name is Osama bin Jamal, and I'm recent graduate from LUMS MBA.
and I alhamdulillah got an first opportunity at Fatma Group. But I think I am struggling with the cover letter side, क्योंकि मुझे लग रहा है कि cover letters की वजह से शायद मैं अपने जो targeted sector है उसको मैं target नहीं कर पा रहा. तो मैं शायद सोच रहा हूँ कि कवर लेटर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है. आई थिंक रेज्यूमे के लिए मैंने 2-3 लोगों से चेक करवाई, तो उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया. देवर HR स्पेशलिस्ट, लेकिन मुझे कवर लेटर में प्रॉब्लम है. Yeah, sure. उसके अलावा कोई? मैम, हम साथ साथ क्वेश्चंस देते जाएंगे जब तक आप इसका आंसर देते हैं. और क्वेश्चंस भी आई Sure. आस्क देम टू ड्रॉप इन द चैट बॉक्स. So basically, well, let me just, I think to save time, let me just elaborate what I'm gonna predict that you guys know. I'm gonna predict you know what a basic resume is. I'm gonna predict you know what a cover letter is. You have a LinkedIn account and you are applying for jobs. So what I'm gonna do is I'm gonna start with the with assuming that you guys already know about these things, and I'm just going to go over the points. And please note down if you have any questions. And also, I would suggest that you have a notepad with you, because this presentation doesn't include every single thing that I'm going to say. So if it will be better if you keep taking notes what I'm mentioning and what I'm speaking. So let's start with the resume. I'm going to give you a basic introduction, like what is it, why do you need this, and how to make it. These are three basic things you need to know. So when you say what is it, basically it's a marketing tool to showcase your qualifications. Let me put this in layman terms. For example, I want to hire you, and I want to know, are you a good fit for my job or not? That's basically it. It's not a complicated thing. It's not something like a rocket science or anything. It's as good as that. Why do you need this? Essential for job applications and highlights your professional identity, useful in networking. Basically, if you have a resume prepared, even like job applications are basically basic thing. Everybody makes a resume for that. It's also good for networking. Basically, if you meet someone, a manager at a high post in an MNC, some HR person, you can just drop your resume and it has basic contact information, and they can reach out to you for some job, for some project, for anything they need in life. So what is it? Basically, it's about how to make it. First step is choose a format. There are like plenty of formats online. There are some free formats, and there are some paid websites as well that can give you very good formats. And the next thing is right away. Basically, that's where basically it comes to के अच्छा लिखना क्या है. लिखने में अब आपके पास बेसिक रेज्यूमे के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं. आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशन होती है, ये सारा कुछ होता है. इसके अंदर अब हमने लिखना क्या है उसके ऊपर हम आते हैं. मैं लाइक I just want to go through these slides and then I'll come back to with example. Basically exactly आपने करना क्या है. Then we come to cover letter. What is it highlight करता है आपके रोल को, enthusiasm को. Basically cover letter और उसके बाद why do you need this, personalizes your application, highlights key qualification, differentiates your like for you from other candidates. कवर लेटर बेसिकली आपने रेज्यूमे में बता दिया कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल यू हैव अ डिग्री इन फाइनेंस और यू हैव बेसिक ACF एंड यू शो दैट कि मैंने किसी कंपनी को ऑडिट किया था. सो उसमें और आप एक ऑडिट की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू लेट देम नो कि जब मैंने ऑडिट किया था तो मैंने ये स्टेप्स किए एग्जैक्टली. तो इफ द हायरिंग पर्सन कैन बेसिकली नो कि अच्छा ने जो ऑडिट किया था उसको वाकई पता है ऑडिट क्या होता है. दिस इज वन एग्जांपल. तो इस तरह से आप पर्सनलाइज करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन देके अपना लिखना है. आई विल कम टू एग्जांपल एज वेल. हाउ टू मेक इट, राइट योर लाइफ स्टोरी. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. इट्स नॉट रॉन्ग. आप अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई है. बेसिकली इसमें फर्क ये होता है कि लाइफ स्टोरी में से कौन सा पार्ट इज नेसेसरी फॉर दैट जॉब. वंस अगेन कवर लेटर रेज्यूमे में तो होता है कि आप अगर 3 से 4 रेज्यूमे बना लो ना तो यू कैन गो एंड लुक फॉर जॉब्स नीड. लेकिन कवर लेटर में आई वुड सजेस्ट कि इफ यू इट इज नेसेसरी, आप लाजमी तौर पे उसको हर दफा के लिए एक
टेलर मेड कवर लेटर ही बनाएं, अदरवाइज इट बेसिकली completely basically misses the target, तो पॉइंट ही मिस हो जाता है उसका अगर आपने रिपीट ही करना। रेज्यूमे वर्सेस कवर लेटर, व्हाट्स डिफरेंस? पर्पस इसके अंदर आ जाता है, रेज्यूमे इज लाइक वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कवर लेटर इज बेसिकली why you want a job and why you are good fit, as I explained earlier. Why you want a job, money is the answer, पैसे चाहिए भाई सबको, like this is, it's a very typical question and I don't agree with the question, yes sir I am very enthusiastic becoming this and this and that's, like I don't agree with that. It's a money game, business, every company runs to make money and you are going to be there to make money, लेकिन थोड़ा सा आपने से ये बताना होता है कि भाई why I can help to make more money. That's the basic concept of getting a job for at any company. Content के अंदर आते हैं, resume is short bullet points, focuses on facts and achievements. कवर लेटर के अंदर आप पूरे सेंटेंस लिखोगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसमें आप डिटेल्स में जाते हो। लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रेश ग्रेड विद लाइक फ्रेश ग्रेड से लेकर 3 से 4 साल एक्सपीरियंस तक आपको वन पेजर रेज्यूमे एंड वन पेजर कवर लेटर इज इनफ। ज़्यादा आगे आप जाओगे तो आई थिंक मैंने एज ए एम्प्लॉयर आई हैव हायर्ड फॉर मेनी पोजीशंस एज वेल इन माय एक्सपीरियंस एंड आई डोंट लाइक रेज्यूमेस जो कि एक पेज से आगे होते हैं। आई डोंट हैव टाइम। उसके अलावा रोल पे आ जाते हैं। रेज्यूमे का रोल है कि शोकेस जो हिस्ट्री के जॉब हंट के अंदर रेज्यूमे लाइक ऐसी चीज़ें हो जो क्लिक करें कि मैं आपके पकड़ूं तो मैं ना फौरन क्लिक करूं, अच्छा यार ये लफ्ज़ लिखा होता, ये लफ्ज़ लिखा होता, ये लफ्ज़ लिखा होता, एंड आई विल कम टू दैट एज वेल। एंड कवर लेटर इज सपोर्ट्स इट रेज्यूमे फॉर मोर डिटेल। कवर लेटर बेसिकली कुछ एमएनसीज मांगती हैं या फिर कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं जो कि बहुत ना नीश किस्म की होती हैं, जिसके अंदर लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड टू हायर एन जनरल पर्सन विद बेसिक क्वालिफिकेशंस। तो मोस्टली कवर लेटर वहाँ पे फ़ायदा होता है कि चाहे बाकी इस बंदे को ना लाइक जो मुझे चाहिए वो स्किल्स इसके पास हैं। इवन अनफॉर्चुनेटली एज अ फ्रेश ग्रेड भी हम अज्यूम करते हैं कि यार मेरे पास स्किल्स नहीं होंगे, लेकिन जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं दे ऑलवेज वांट कि यार फ्रेश ग्रेड भी हो ना तो सीख के आया हो, मतलब कि रेज्यूमे इंटरव्यू से पहले ही ना उसको सब कुछ पता हो। Unfortunately this is the case. I disagree with that, लेकिन this is the case basically. What's next over here is a typical organization departments. This is very important and why I have added this is basically आपको चूज करना पड़ेगा भाई मैंने किस डिपार्टमेंट में जाना है, व्हाट्स गुड फॉर मी। अगर आप कहोगे यार जिस फॉर एग्जांपल यू आर फ्रेश ग्रेड एंड यू सी यार जिस डिस्क्रिप्शन में लिखा है ना, जिस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि फ्रेश ग्रेड्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई, तो नहीं देखना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बस थोड़ा सा रेज्यूमे टेलर किया, जॉब डिस्क्रिप्शन से लाइन कॉपी की और डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। इट विल डीमोटिवेट यू क्योंकि आप यू विल अप्लाई लाइक job application to interview success rate will be very minimal. Already it's like अगर आप 100 jobs apply करते हो and you get 10 interview calls, that is a very good percentage in real life. और अगर आप वैसे थ्रो करते रहोगे तो वो 10 से 5 से 2 पे भी आ जाता है पर 100 applications, तो that discourages you further कि यार मैं तो कर रहा हूँ बहुत कुछ यार, मैंने तो इतने रेज्यूमे फेंक दिए। I remember way back in my time we guys used to meet in a senior year like और होता था मैंने 160 जॉब्स अप्लाई किया वीकेंड पे, मैंने 200 पे किया, मैंने 150 पे किया, कितने इंटरव्यू कॉल्स है यार कोई नहीं आए यार, पता नहीं क्यों यार मेरे साथ मेरी किस्मत ही खराब। भाई किस्मत लाइक अपनी जगह पे है, आपने एफर्ट भी टारगेटेड एफर्ट डालनी होती है। अगर आपने बाबर आजम बनना है और आप शाहीन अफरीदी की ट्रेनिंग कर रहे हो तो बाबर आजम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बॉलर हो तो शाहीन अफरीदी की पोजीशन पे अप्लाई करो भाई, उसको रिप्लेस करो, बाबर आजम को नहीं रिप्लेस करना। सो लेट मी गो थ्रू दिस। ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। थोड़े से डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एनी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन इन एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ दीज डिपार्टमेंट्स। आप सेल्स से स्टार्ट होते हो, सेल्स में फर्दर मैंने बहुत मोटा है, आई एग्री कि बहुत ऊपर से बड़ा व्यू है, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि यार मैंने जाना क्या है। सेल्स में टेक्निकल सेल्स होती है, कमर्शियल सेल्स होती है। टेक्निकल सेल्स बेसिकली सेल करने जाते हो फॉर टेक्निकल सेल्स को
प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, और कमर्शियल सेल्स के पास नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, वो क्लाइंट को क्लोज करने के लिए काम देते हैं। दिस इज अ डिफरेंस के। और फिर मार्केटिंग पे आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिसमें बिल बोर्ड्स होंगे, आपकी टीवी एड्स होती हैं, एवरीथिंग। देन देयर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें आप रील्स बनाते हैं बेसिकली, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग रील्स और everything. Everyone knows about that. Then there is proposal team. Proposal team के अंदर technical proposal, financial proposals. These are two different jobs. Basically क्योंकि financial proposal में आपको financial information होनी चाहिए, and that is not something that you can easily learn. About the taxes, about the profit margins, gross margins. आपको हर चीज़ उसके अंदर चाहिए होती है, and it's different from technical proposal. Once again, sales की तरह से technical वाले को अपने प्रोडक्ट का पता होगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग कंपनी HP है, उसका लैपटॉप है, तो टेक्निकल वाले को पता है लैपटॉप में क्या क्या लगा है, कैसे कैसे लगा है, एग्जैक्टली पता है। और फाइनेंशियल वाले को पता है कि भाई मेरी स्क्रीन की क्या कॉस्ट है, कीबोर्ड की क्या कॉस्ट है, बनाने की कॉस्ट है, बेचने की कॉस्ट है, और मुझे बच क्या है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इस कंपनी को 100 लैपटॉप चाहिए तो मैं इतने पैसे बेचूं या इतने पैसे बेचूं, तो वो उसका काम है। देन देयर इज अकाउंट्स। अकाउंट्स में एक जनरल लेजर अकाउंटिंग होती है जिसमें आपके पेएबल्स, रिसीवेबल्स, पेरोल, एवरीथिंग कम्स जो डे टू डे बेसिस पे होता है। देन देयर इज आल्सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये आपको डिपार्टमेंट बड़ी कंपनीज में मिलता है, MNCs में, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फंड्स इन रोटेशन, और उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये कोई भी काम करना है तो उसको प्लान करके चलना पड़ता है। दे कैन जस्ट गो के यार मुझे हानिया मेरे को हायर करना है एक ऐड बनाने के लिए पेप्सी ने, तो वो एक ऐसे नहीं हायर हो जाती, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। अच्छा यार इतने पैसे लगेंगे इस क्वार्टर में, इस मंथ में, इस वीक में मेरे पास कैश फ्लो बड़ा है, तब मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली जस्ट टू गाइड यू कि क्या होता है। देन देयर इज ऑपरेशंस टीम। ऑपरेशंस टीम में टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं। दिस इज योर वर्कफोर्स। फॉर एग्जांपल किसी भी आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो टेक्निकल ऑपरेशंस के बंदे होते हैं। तो दिस इज व्हाट दे डू। एंड देन देयर इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो उन लोगों को चलाते हैं, एंड नॉट इन सच के वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग नहीं होते, लेकिन इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जॉब कि आपने मैनेज करना होता है डेडलाइंस को। बेसिकली ऑपरेशंस टीम और सेल्स टीम के जो अंदर जो ब्रिज होता है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, जो कि मेरा फोर्टे है। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 years नाउ। देन देयर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें टैलेंट हट आ जाता है, और पेरोल और HR मैनेजमेंट के डे टू डे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल यू से कि यार मेरे मैनेजर ने मुझे बुरा कर दिया, या फिर फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, पानी नहीं है, ठंडा रहेगी, इस सब तक के काम भी HR के टिपिकल कंपनीज में दिए होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ जॉब्स ओवर देयर एज वेल। देन लास्टली देयर इज कस्टमर सर्विस। उसमें एक कस्टमर सक्सेस होता है और एक आफ्टर सेल सर्विस होता है। दीज आर ओवरलैपिंग जॉब्स, लेकिन कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज के आपने सेल कर दिया और क्लाइंट वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है और आपको लाइक उसमें मसला आ रहा है तो बता देगी। कस्टमर सक्सेस इज बेसिकली इंश्योर करना है बेचते वक्त कि यार जो मैंने बेच रहा हूँ तो उसके दौरान ही सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कस्टमर को जो चाहिए तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इतनी लंबी डिस्कशन का पॉइंट ये है कि ये चीज़ अगर मुझे 4 साल पहले पता होती तो मेरे पास बहुत अच्छी जॉब्स होती। ठीक है, अभी भी मेरे पास अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन आई फील आई हैव लैक्ड ऑन मेनी जॉब्स because I was not putting effort in the right place and the right way. So this is the समरी ऑफ कि आपने क्या क्या करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप बैठो, आप देखो यार मुझे कौन कौन सी जॉब्स जो हैं मैं उस पर फिट करता हूँ। इसमें 2 चीज़ें आपने देखनी है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसके अंदर देखना है यार टेक्निकल स्किल्स मेरे पास हैं कि नहीं है। स्टेप 1 डन। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप IT की कंपनी में अप्लाई करो, अकाउंटिंग की है तो कहीं पे भी अप्लाई करोगे। The second thing is कि आपने there are a lot of like ChatGPT is like the blessing right now. I wish I had that. लेकिन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए यार मैं कौन से डिपार्टमेंट में फिट होगा एज अ पर्सन। फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक टू टॉक टू मच लाइक मी प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि मेरा काम सारा बातें करना होता है, मैं कोई काम नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मेरा सिर्फ ये है यार ऑपरेशंस टीम को संभाल लिया, क्लाइंट को संभाल लिया, फलां को संभाल लिया, फलां को। आई विश आई कुड शो यू माई ऑफिस कैलेंडर, और मेरे लाइक 5 हफ्ते में 5 दिन होते हैं और हर दिन मेरी 4 से 5 घंटे से मीटिंग से अलाइंड है, जो कि होनी है। सो आप उसके अंदर अच्छे हो। अगर यू डोंट लाइक टॉकिंग टू मच लेकिन यू आर रियली गुड एट योर जॉब, तो आप टेक्निकल साइड पे चले जाते हो। लाइक दीज आर थिंग्स यू नीड टू रियलाइज। इस सारे लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि जब आप ये चीजें नोट कर लेते हो ना, लाइक क्लिक कर लेते हो सब कुछ, then it's very easy to make a resume, make a cover letter, and it's also very easy to give interview. आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ। आपको जब पूछेगा यार टेल मी 5 गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ,
एक टिपिकल अंकल जी बैठे होंगे, वो पूछेंगे यार बताओ। तो जब आपको पता होगा ना यार मैं इस जॉब के लिए मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा मेरे अंदर है, मैं ना फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आई हैव बीन वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंस वेरी अर्ली एज। तो मुझे ना मजा आता है यार कि अच्छा यार मुझे पंगा दे दो और मैंने ना उसके अंदर से हल निकाल के लेके आना, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इट्स वेरी मेजर थिंग, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना, यू विल गेट टोल्ड ओवर बाय एवरी सिंगल पर्सन। तो मुझे पता था भाई मुझे आता है, तो आई वुड स्टार्ट विद दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, सारा कुछ आता है। आई विल शो यू माय कवर लेटर एज वेल, उसके अंदर मैंने ये ना एक क्वेस्ट अच्छे तरीके से मैंने उसको प्रेजेंट भी किया स्किल को। सो आई वुड से कि रेज्यूमे से पहले ये वाली एक्सरसाइज एक बार बैठ के वीकेंड पे तसल्ली से करें और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड करें। लेट मी जस्ट आपको छोटा सा बता दूं बैड रेज्यूमे क्या होता है। आपको गूगल आप करेंगे ना, आपको कोई 36,000 चीजें मिलेंगी यार बैड रेज्यूमे क्या होता है यार, कलर यूज नहीं करने, पिक्चर नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आई डोंट एग्री विद दिस। मैंने हायरिंग की है, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को हायर किया जिनका रेज्यूमे देख के लगेगा शायद इन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन व्हाट आई फील लाइक मुझे ना वो सिर्फ ये 3 चीजें, एक एक चीज चाहिए। मैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आई हैव अ टीम ऑफ लाइक 7 पीपल वर्किंग अंडर मी, आई हैव 7 to 8 प्रोजेक्ट्स हर वक्त में चल रहे होते हैं, क्लाइंट की कॉल्स होती हैं। अब उसके दौरान मैंने हायरिंग करनी, एचआर ने हायरिंग करनी होती है, एचआर को कॉल करके आपसे रेज्यूमे मंगा ले, स्क्रीनिंग कॉल कर ले। मेरे पास आपने मेरे अंडर काम करना तो मैंने आपका रेज्यूमे देखना, जो अगर मैं कहूंगा ना यार ये बंदा ठीक नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग द कॉल। सो मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो सबसे मुझे एक चीज मैटर करती है कि इट्स नॉट प्लीजिंग टू एन आई, मैं उसको देखूं और मेरा देखने का दिल ही ना करे। और उसकी वजह क्या होगी, नॉट अलाइन वेल, एस्थेटिक्स टोटली फारिग है। कलर यूज करने करो यार, लेकिन थोड़ा सा यार चैटिविटी कर लो, कौन सा कलर कौन से के साथ आता है। येलो रेड वाला रेज्यूमे ना बनाओ, टू मच डिटेल्स। कई बार लोगों ने होता है यार कि लाइक अपनी ना पैदाइश से लेके शुरू हुए होते हैं कि यार मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं मैंने बताना ही कुछ नहीं है, मैं तो वैसे जेम्स बॉन्ड हूँ, मेरे बारे में कोई जानेगा तो ये क्या बात हुई। तो यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस, और एक प्रेजेंटेबल आई प्लीजिंग रेज्यूमे आपको होना चाहिए। उसके बाद कवर लेटर के ऊपर आ जाते हैं, व्हाट आर द बैड कवर लेटर्स। जेनेरिक कंटेंट लिखा है कि यार मैं लम्स गया था, मैंने डिग्री ली, मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक जेनेरिक चीज़ें। रिपीटेटिव कंटेंट, एक ही बात शुरू की वहीं पे एंड कर दी, लाइक और डजंट एड्रेस और लिंक टू जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि बंदे को ऑडिट करना आना चाहिए, तो आपने बताना है भाई मुझे ऑडिट कैसे करना आना चाहिए। मैं फॉर आपको लिंक करना है एवरी काइंड ऑफ जॉब्स। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैं खुद कसूरवार भी हूँ, एरर्स और टाइपोज। मैंने खुद कुछ एक दो जॉब्स के ऊपर स्क्रीनिंग कॉल्स, टेक्निकल इंटरव्यूज तक गया हुआ हूँ, लेकिन फाइनल में जाके उन्होंने मेरा कवर लेटर उठाया इन पर्सन इंटरव्यू में, उसमें टाइपोज थे। तो लाइक ये यार ये क्या किया हुआ है आप, तो it made a very bad impression, and I मुझे नहीं पता exactly वो reason थी कि नहीं, लेकिन I think that reason played a very major role in like me not getting the job. तो ये basic चीजें हैं जिस what I want to cover. Now I'm going to move forward with के actual में अच्छे like बुरे resume की examples, let me give you that, और फिर हम जाएंगे अच्छे resume की examples की तरफ। ये जो बुरे रेज्यूमेज हैं मैंने इंटरनेट से नहीं उठाए, मैंने लिटरली ये मेरे रेज्यूमे रिसीव हुए हैं। तो एक सेकंड, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? वंस अगेन मुझे नहीं आ रही। आई थिंक यू Yes, we can गाइस, see it. आई थिंक यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। सो बेसिकली इज हुआ ये है कि अब ये एक रेज्यूमे है, 29 साल भाई साहब की उम्र है, और उन्होंने, मैं आपको उसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये रेज्यूमे है उनका टोटल। इट्स बैचलर्स किया हुआ बंदे ने, और मुझे उसने, अब मजे की बात क्या है, उसने एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि उसने स्किल्स लिखे हुए हैं कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, लाइक उसने क्या क्या काम किया हुआ है, प्रोफेशनल उसने चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन लाइक व्हाट इज दिस मैन, कोई तुक बनती है इसको 2 पेज पे जाने की, और ना कोई सर है ना कोई पैर है। होम एड्रेस इस तरह से लिखा हुआ है, करंट एड्रेस वह साइड पे गया हुआ है। लाइक
इस तरह का रेज्यूमे जो है ना, मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने दोबारा निकाल के अब पढ़ा है इसको, मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको, मैंने आई जस्ट लाइक ओपनड इट, आई डिडंट लाइक इट, आई मूव फॉरवर्ड। इट्स डोंट ब्लेम मी, मैं मेरा मसला नहीं है, इट्स द गेम, ब्लेम द गेम, डोंट ब्लेम द प्लेयर्स। तो एक तो ये एग्जांपल्स होगी। उसके बाद अब इसके अंदर मैं समराइज करता हूँ उसमें हुआ क्या है। उसने सारे मेन पॉइंट्स उसने किए थे, उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसने अपना एड्रेस दे दिया, उसने अपने एजुकेशन बता दी, कहाँ से पढ़ा हूँ, क्या मैंने किया है, प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस उसने बता दिया, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि लेआउट तो सर पैर है ही। लाइक उसने अपने छोटे भाई को कहा यार रेज्यूमे बनाई, यार उसे बना के भेज दिया। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, कैन यू लाइक स्क्रीन चेंज हुई है, लाइक बिकॉज आई कैन नॉट सी। जी जी, नजर आ रही है। सो बेसिकली अब ये देखें, ये एक रेज्यूमे है विच इज वेल अलाइंड। लाइक इसमें बड़ा लाइक एक मुझे समझ आ रही है, ये हेडर है, ये ईमेल है, उसने एजुकेशन का मुझे बता दिया है, स्किल्स का बता दिया है, प्रोजेक्ट्स का बता दिया है। अब मुझे पता ही नहीं है ये बंदा क्या करता है। लाइक ये चीजें मैं जानने के बाद लेट आप मुझे बताओ कि ये किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया उसने। मुझे तो पता है, तो मुझे लाइक यू कैन नॉट टेल कि यार इसने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, क्यों? उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, उसमें लिखा ही नहीं हुआ भाई। मैंने एग्जैक्टली लाइक बुलेट पॉइंट्स नहीं थे जो कि अदील अहमद के रेज्यूमे में थे। उसका लेआउट ठीक नहीं था। यहाँ पे लेआउट ठीक है तो यहाँ पे सिरे से ना टू लेस डिटेल्स, ठीक है। और लेट मी गिव, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई थी ना कि टू लेस डिटेल्स, टू मच डिटेल्स और एस्थेटिक्स। एस्थेटिक की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, टू लेस डिटेल्स की एग्जांपल दी। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ टू मच डिटेल्स। अब ये सफीर भाई है, ये सफीर भाई ने भी उसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था जो अदील भाई थे। ना सफीर भाई आए ना अदील भाई आए, तीसरा बंदा आया। बिकॉज सफीर भाई के रेज्यूमे में उन्होंने आई थिंक उनके पास हाँ 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना लंबा रेज्यूमे है। सारे फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन थी, उसने सारे प्रोजेक्ट मेंशन कर दिए मैंने ये किए हैं, और एजुकेशन लिख दी, आपने एक्सपीरियंस अपना लिख दिया, क्या लिख दिया। अब आप लोग यार उसने अपनी चीज़ें पूरी मेंशन कर तो दी, लेकिन व्हाट्स सो बैड अबाउट इट, व्हाट्स बैड अबाउट इट इज़ के ये एक पेज से आगे जा रहा है, इसमें चीज़ें हिट हुई हुई हैं और एक पेज से आगे जा रहा है। और आपको मैं पर्सनली मैंने रिज्यूमे को पढ़ा ज़रूर था, लेकिन आई डिडंट लाइक इट बिकॉज यार मुझे नहीं पता चाहिए कि भाई तुमने प्रोजेक्ट का नाम नहीं चाहिए मुझे, एक सिर्फ और सिर्फ मुझे बताओ कि उसमें तुम्हारा रोल क्या था, जो कि उसने अपनी जॉब के रोल के अंदर बताया हुआ है, और दैट इज गुड इनफ। अनदर रीजन टू शो यू दिस इज ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ये जो लिखा हुआ है ना भाईजान, ये रेज्यूमे में यार या तो ऑब्जेक्टिव कोई कस्टमाइज करके डालो या ना डालो, सीधी सी बात है। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हु एंजॉय टीम वर्क एंड क्विक लर्नर, आई एम टू परस्यू इन एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड बट डिटरमिन्ड टू एक्वायर रेलेवेंट सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन एयर क्वेश्चन। मुझे कोई बंदा बता दे इसका मतलब क्या है, ये क्या चाहता है इसका दुनिया में, नहीं मुझे पता। मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता, इसलिए उसने ये लिख दिया है कि भाई अंग्रेजी है, अच्छे अच्छे लफ्ज हैं और वोकैबुलरी कोई अच्छी इस्तेमाल कर ली है और मैं भाई ओके हो गया। लाइक अगर ऑब्जेक्टिव डालना है ना तो अच्छे तरीके से डालना है, वरना नहीं डालना। ये 3 हो गई बैड एग्जांपल्स। लेट मी शेयर माय ओन रेज्यूमे। इसको मेरे पास टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और अगर मैं अप्लाई भी करता हूँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन अप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरे पास 4 प्रपोजल है, तो 4 रेज्यूमे से अपने। और लाइक तो हर रेज्यूमे थोड़ा सा डिफरेंटली टेलर्ड है, हर डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट पोजीशंस के लिए। कोई ज़्यादा सीनियर पोजीशन है तो मैंने उसमें डिटेल्स ज़्यादा कर दी हैं, कोई जूनियर पोजीशन है तो मैंने डिटेल्स कम कर दी हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू विद जीजू इज के लाइक थोड़ा जो कम डिटेल वाला रेज्यूमे, जिसमें मैंने लाइक क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी प्लीजिंग टू एन आई। ये अब मेरा रेज्यूमे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ। यू कैन सी एक मार्जिन है मेरे पास, और एक एक सेट ऑफ लाइक एक फ्लो है रेज्यूमे का, एक क्लियरिटी है कि मुझे चाहिए क्या।
अब आई विल कम टू द लेआउट ऑफ द रेज्यूमे एज वेल, क्योंकि थोड़ा सा लेआउट इज नॉट सूटेबल फॉर फ्रेश ग्रेड्स, क्योंकि इसमें मैंने एजुकेशन को सबसे नीचे किया हुआ है, क्योंकि मेरे 4 साल हो गए। अब एजुकेशन जब 3-4 साल हो जाते हैं तो एजुकेशन मैटर्स, लेकिन बात पहले वो कहते हैं भाई आपने किया क्या 4 साल में, क्या उखाड़ा था मुझे वो बताओ, बाद में बताना तुम्हारी डिग्री कहाँ से थी, पुरानी बात होगी। सो लेट मी गेट टू माई ऑब्जेक्टिव्स. As a project manager with 3 years of experience, I have a proven track record of successfully managing and delivering projects within a budget and on schedule. अब ये जो within a budget on schedule है ना, आप project management की कोई पोजीशन उठा के देखें, आपको 99% पोजीशन में ये 2 लफ्ज दिखेंगे। तो पहले सबसे पहली बात तो मैंने उन 2 लफ्ज को mention कर दिया. My expertise is managing cross-functional teams has enabled me to streamline project processes and improve overall efficiency. इसमें मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एक होती है विद इन टीम, लाइक जो आईटी सेक्टर के अंदर होती है कि आपके पास आईटी के लोग हैं और उनसे काम करवाना है और काम खत्म हो गया. जो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी ट्रेडिशनल. मेरे पास मैंने अब मेरा लाइक प्रोक्योरमेंट से भी बात करनी है, इंजीनियरिंग से भी बात करनी है, साइड टीम से भी बात करनी है, एग्जीक्यूशन सेल्स सबके मैंने देखना है. 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है. तो मेरे पास क्रॉस फंक्शनल टीम का एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो लिख दिया भाई कि ये मैं इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं इस वजह से ये चीज़ें मैंने उसमें लेट मी ब्रेक इट डाउन. मैंने कहा ये मैं करता हूँ, क्रॉस फंक्शनल टीम्स को मैनेज करता हूँ और ये मैं उससे अचीव करता हूँ. प्रोजेक्ट प्रोसेस और इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन करता हूँ प्रोजेक्ट प्रोसेस को. ये भी वंस अगेन आपने, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन देखोगे मोस्टली में ये लिखा होता है भाई प्रोजेक्ट प्रोसेस लगाने हैं और आपने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है. देन देयर इज के विद एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एज आई शेयर्ड यू कि मैंने ऑयल एंड गैस में भी काम किया, आईटी में भी काम किया, अभी एनर्जी सेक्टर में बैठा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा कवर कर लिया कि भाई कौन कौन सेक्टर मेरे रेलिवेंट है. आई हैव डेवलप्ड अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, risk management and resource allocation. I have a keen eye for details and always ensure that a project goals are aligned with organization objectives. अब ये जो चीजें है ना, आपको लाइक यू कैन सी इट वेल कि मैंने इसको लिंक किया है विद माय विद द जॉब डिस्क्रिप्शन जिस जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ. और इसमें कोई जेनेरिक बात नहीं है कि आई वांट टू परस्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ताकि मैं एक वर्सेटाइल टीम का पार्ट हूँ. मैंने ना टीम को जिक्र किया है, ना मैंने जिक्र किया है कि भाई मैं तो मेरी फील्ड का क्या फायदा है, जो कि मैं लेट्स गो बैक टू दिस रेज्यूमे. इसमें था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हु एंजॉय टीम वर्क एंड क्विक लर्नर. आई एम परस्यू टू एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. एंड भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता इलेक्ट्रिकल फील्ड की एडवांसमेंट से. आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे फर्क पड़ता है अपने से, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, ये भाई मेरे पास स्किल्स हैं और उस स्किल्स से मैं ये अचीव कर सकता हूँ. सो व्हाट इट टेल्स हायरिंग पर्सन इज कि भाई ये लाइक वो पढ़ के उसको समझ आ जाएगी क्या है, मुझे ये बंदा चाहिए या मुझे ये बंदा नहीं चाहिए. ठीक है. उसके बाद स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर मैं लिख दिया सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है, जीरा, ट्रेलो, स्लैक, ओडू, स्क्रम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गैंट चार्ट्स, प्रोडक्ट रोड मैप, जो भी मैंने काम किया हुआ है ना, वो मैंने इसमें लिख दिया है कि यार मैंने इन चीज़ों पे काम किया हुआ है. स्किल्स में मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, वर्सेटाइल एंड कमिटेड. ये चीज़ आप वंस अगेन इट आपने जब मैंने एक्सरसाइज की होगी ना कि भाई मैं हूँ क्या, मतलब हूँ क्या मतलब मेरी स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्या हैं. ऑनेस्ट, मैं लाइक आई डोंट लाइक मेकिंग रॉन्ग कमिटमेंट्स, तो ऑनेस्टी मेरी है. वर्सेटाइल, मैं हर डिपार्टमेंट की एबीसीज जानता हूँ. तो वर्सेटाइलिटी मुझे फ़ायदा देती है कि कोई भी मुझे कोई सी फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट बंदा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं. सो ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट विद मी एज वेल. तो वर्सेटिलिटी का मुझे वहाँ फ़ायदा होता है. कमिटेड, जब एक काम मुझे मिलता है तो मैं उसको करता हूँ. दीज आर वेरी जेनेरिक थिंग्स. आपको लाइक ये 3 चीज़ें आप दुनिया के हर प्रपोजल में रेज़्यूमे में डाल सकते हो, लेकिन आई वुड से कि आप वो चीज़ें डालो जो कि जब आपको कोई इंटरव्यू में पूछे ना कि आपके स्किल्स क्या हैं, आप यहाँ से उठाओ और उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक करो. मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने कोई बहुत ही तोप चीज़ या कोई नई चीज़ लिख दी है, लिखी मैंने जनरल चीज़ें हैं, लेकिन बिकॉज़ मैंने पहले मेरा थॉट प्रोसेस किया हुआ था ना, तो मैं उसको लिंक कर सकता हूँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू. एंड दैट्स व्हाट रेज़्यूमेस जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, मैं भी पर्सनली क्या चाहता हूँ, मुझे पता है आपने रेज़्यूमे सबमिट किया है. व्हाट आई वांट इज़ कि बहुत सी लोगों ने ना लाइक एमई लिखा होता है. तो मैं चाहता हूँ कि भाई क्या जो आपने लिख के मुझे सबमिट कर दी है,
आपकी सीरियसनेस का अंदाजा मैं यहाँ से लगाऊंगा कि डू यू रियली नो कि आपने क्यों लिखा है, आपको उसकी बैकग्राउंड पता है कि क्यों लिखा है। इफ यू नो देन आई नो यार यू आर अ सीरियस पर्सन, आपको वाकई ये जो आपका पता है, आपको मैं आई वुड कंसीडर यू वेरी वेल। अगर आप मुझे इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह बताओगे तो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन टू बी ऑनेस्ट। देन आई कम टू माई एक्सपीरियंस। इसके अंदर मैंने लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर एट दिस कंपनी, कितने अर्से से कितने अर्से तक मैंने काम कर रहा हूँ, 2021 से कंटिन्यूड काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। Communication stakeholder for 6 major projects, handling multiple internal projects. 4 मोबाइल एप्लीकेशंस मैंने डिलीवर किए हैं, SaaS प्रोडक्ट्स मैंने डिलीवर किए हैं। अब इसमें आपको मैं हाईलाइट करता हूँ 6 मेजर क्लाइंट्स, 4 एप्लीकेशंस, efficiency increased by 70% in first 2 months, and then there is close the project in 5 months. इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है ना कि दुनिया में एक लैंग्वेज है तो दुनिया का हर बंदा इंसान सोचता है, वो है नंबर्स। आप एक गांव में चले जाओ या मैनहट्टन न्यूयॉर्क चले जाओ, नंबर्स सबको समझ आते हैं। आई एम एज अ एम्प्लॉयर, आप मुझे बताओगे ना मैंने इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे, या मैंने इतने परसेंट अचीव किया था, या मैंने इतने $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मैंने किया था। लाइक मेरे एक रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि आई हैव हैंडल्ड $8 मिलियन प्रोजेक्ट्स, $1 मिलियन प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैं उसमें क्वांटिफाई करूंगा बिकॉज अगले बंदे को ना, मैं फॉर एग्जांपल अगला सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा होगा, वो देखेगा मैंने $8 मिलियन का प्रोजेक्ट किया, वो ऐसे समझ जाएगा कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस, क्योंकि $8 मिलियन प्रोजेक्ट्स में और $1 मिलियन प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है इतना। लाइक क्योंकि बजट ज्यादा होता है, स्कोप बहुत बड़ा होता है, तो आपके लाइक आपका झगड़ा ज्यादा लगता है और आप उतने ज्यादा स्किल्ड होते हो। तो ट्राई टू क्वांटिफाई योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अल्फाज भी इस्तेमाल करो, मेरे हर पॉइंट के अंदर नंबर नहीं है, आई कैन एग्री विद दैट, लेकिन नंबर्स एटलीस्ट 50% पॉइंट्स के अंदर नंबर होने चाहिए आपके पास। यार मैंने ये नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर था। और जिन रेज्यूमे लाइक, और ये जो रेज्यूमे को दिखा रहा हूँ ना, ओवर द कोर्स ऑफ 4 years, मैं अभी आज इस सेशन से पहले देख रहा था, मैंने 36 रेज्यूमे डिफरेंट रेज्यूमे बनाए जाते हैं अपने खुद के। 36 डिफरेंट से मतलब है कंटेंट डिफरेंट नहीं, टोटल फॉर्मेट ही डिफरेंट। उसमें मैंने लम्स का फॉर्मेट भी था, जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था, अपना भी निकालता गया। और मैंने द रीजन आई हैव चोजन दिस लेआउट इज कि इस रेज्यूमे की इंटरव्यू कॉल सक्सेस वाज द हाईएस्ट। मतलब कि मैं 100 में से 10 मैंने कहा था अच्छी एवरेज है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आई बिलीव कि इसमें से 10 में से 15 वाली एवरेज एटलीस्ट होगी। मैं अगर काउंट करूंगा अभी तो लाइक 100 में से 15 वाली, लाइक बेटर देन एनी अदर रेज्यूमे आई हैव मेड। और इसमें मुझे इंटरव्यू कॉल्स आती रही। इंटरव्यू कॉल के बाद जॉब विन करना या ना करना वो इंटरव्यू क्वालिटी है, लेकिन रेज्यूमे का मेन काम है कि आपने क्या कहते हैं इंटरव्यू कॉल आ गई। लास्टली मेरे पास अब एजुकेशन है और लीडरशिप मैंने लिख दिया कि भाई एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। ये मैंने बेसिकली ना, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना ये डालना नहीं था। जब मैंने रेज्यूमे बना लिया ना, तो नीचे थोड़ा सा जगह मुझे लाइक अच्छी नहीं लग रही है एस्थेटिकली, तो मैंने कहा यार क्या लिखूं, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लिखूं, लाइक तो वेंट टू जेनेरिक थिंग। लीडरशिप इज वन ऑफ द क्वालिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहिए होती है। मैंने उसको उठाया, एक लाइन डाली, और टू बी ऑनेस्ट वो लाइन मेरी नहीं है, वो चैट जीपीटी की लाइन है, लेकिन किसके बारे में लाइन लिखनी है वो डिस्क्रिप्शन से आया। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन विद माय रेज्यूमे। लास्ट चीज है जो मैंने प्रेजेंट करनी है, इसके बाद आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। वो है कवर लेटर। कवर लेटर के ऊपर आई होप यूर गाइस आर नोटिंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक मैं स्पीड से मूव कर रहा हूँ, लेकिन आई होप सब लाइक लोग आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। अच्छा, कवर लेटर के अंदर भी वंस अगेन फॉर्मेट आपने देखना है। एक बहुत लाइक मैं कुछ पढ़े बगैर भी जूम आउट करके देखता हूँ, तो मेरे पास एक सिंपल सा क्लियर फॉर्मेट है कि यार ये किसी पढ़े लिखे बंदे ने बनाया है, उसमें अंग्रेजी में तो बाद में आते हैं ना। ठीक है, अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया कीप ट्रैकिंग के ऊपर। दिस इज एक्चुअल कवर लेटर दैट आई हैव सबमिटेड। तो इसके अंदर सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने अपना नाम लिखा है, लाइक एड्रेस, वन अदर थिंग, एड्रेस लंबा पूरा ना लिखो यार, शहर लिखो, मुल्क लिखो, बस। आई डोंट नीड टू नो कि आप गली नंबर 25 लाइक जॉर्ज टाउन ब्लॉक बी में रहते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप लाहौर में रहते हो, मैं लाहौर में अप्लाई कर रहा हूँ,
गुड इनफ। आपने वो लिख दिया, अपनी ईमेल लिख दी, फ्रॉम वेयर एट वेयर दे कैन रीच यू आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अहमद खालिक मैनेजर रिक्रूटिंग कीप ट्रैकिंग लाहौर पाकिस्तान। आपने कवर लेटर में अगले बंदे की जो अगली ऑर्गेनाइजेशन की ना आपने मेंशन करना है बाय नेम। अब सवाल आता है कि बाय नेम आपने कैसे मेंशन करना है। होता ये है कि मोस्टली आप जब लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट लिखे होते हो ना, तो किसी बंदे ने पोस्ट लगाई होती है, आपको दिख रहा होता है, या तो वो जॉब पोस्ट भी होता है तो लिखा होता है पोस्टेड बाय दिस पर्सन। वैसे जनरल पोस्ट हो तो वो तो वैसे लिखा होता है भाई किसने लगाई है। आप उसकी प्रोफाइल में जाओ, उसका नाम पढ़ो, उसकी पोजीशन पढ़ो, कंपनी लिखो और अप्लाई कर दो। लेट्स सपोज कि आपको एक लीड आई है, लाइक अपॉर्चुनिटी आई है, आपको नहीं पता कि वहाँ का ना किसने पोस्ट लगाई थी, लाइक दोस्त ने यार व्हाट्सएप कर दिया मुझे, कंपनी का नाम पता है ना, कंपनी सर्च करो, उसका जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर है ना, जो लाइक जो आप ढूंढ सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सिंपल सा तरीका है, लिंक्डइन पे जाओ, कंपनी ढूंढो, पीपल में जाओ, ह्यूमन रिसोर्स का फिल्टर लगाओ, बंदा ढूंढो, लेकिन नाम जरूर लिख। नाम बेसिकली जब आप लिखा होता है ना, एड्रेस किया होता है, बेसिकली वंस अगेन शोज कि आप कितने सीरियस हो इस बारे में। नेक्स्ट मैंने लाइक मैनेजर रिक्रूटिंग कीप ट्रैकिंग एड्रेस आ गया। देन देयर इज डेट, सिंपल सी 3 मार्च 2022 को मैंने अप्लाई किया था, उसको आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स। हाँ, मैंने सिंपल से लिखा है एप्लीकेशन फॉर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन एट कीप ट्रैकिंग। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि नाम था तो मैंने स्टार्ट किया डियर अहमद, हेयर बाई अप्लाई फॉर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट। इस चीज़ से बेसिकली क्या हो गया, मैंने इसमें क्लियरली लिख दिया है कि भाई मैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इट्स लाइक इंट्रोडक्शन हो गया। एट मैंने थोड़ा सा ना, फिर आपने स्टार्ट करना है ना एक पॉजिटिव नोट के लिए, द वे इट शोज द रिक्रूटर कि आपने वाकई यार कस्टमाइज किया था अपने कवर लेटर को। पहली 3 लाइनें ना, 2 से 3 लाइनें जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना उसके बारे में लिखती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, एट फर्स्ट glance keep trucking look like just another company that works in transport industry. However, after doing my own research, it has become that clear that keep trucking offers a great life experience as it has expanded its business at exponential pace and already operating in multiple countries across the world. ठीक है, ये आप जब लिखते हो ना तो अगले बंदे को सोच समझ आई थी कि बंदे ने ना एफर्ट डाली थी और उसने वाकई में ना ये मेरे लिए ही लिखा है जो पढ़ने वाला है, किसी रैंडम बंदे के लिए नहीं लिखा। नेक्स्ट इज के आपने ये अच्छा लिखने का तरीका क्या है, किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उसकी मिशन स्टेटमेंट चुननी है आपने, चैटजीपीटी में जाना है, उसको कहना है यार इस मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक ना 1 2 3 प्यारी पाई लाइनें ना पॉजिटिव सी लाइनें कंपनी के बारे में लिख दो। ये मुझे खुद लिखनी पड़ी थी, उस वक्त नहीं था चैटजीपीटी वंस अगेन, तो आपने लिखनी है और आपने इसमें डाल देनी। नेक्स्ट इज हैविंग वर्क एंड मैंने स्टार्ट किया डेस्कॉन की जॉब से, उस टाइम के कहते हैं डेवलप जॉबर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैनेजमेंट स्किल्स, 2 प्रमोशंस मुझे मिली 10 महीने में। यहाँ पे मैंने लिखा भाई ये जो मैं बात कर रहा था, आई हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड अ प्रोजेक्ट वर्थ US $8 million। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल डिजाइन ऑल द वे लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इट्स रेलिवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने जो उसमें कहा था, मैंने अब यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, which are the main 2 skills about the job I'm doing। तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। न्यूमेरिकल फिगर्स आ गए, 2 प्रमोशंस 10 महीने में US $8 million। फिर आगे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने प्रोक्योरमेंट के साथ, सेल्स के साथ, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट्स का मिलकर मैं काम कर रहा था। Then I came to at my current company, I'm a part of management team at a 2018 startup dealing with energy management solutions. Here I am responsible for project planning and working closely with operations team। Once again like basic चीजें, इस वक्त it was मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ था कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मेरे पास ज़्यादा था नहीं लिखने को, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी क्या करती है। मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था तो मैंने कंपनी का थोड़ा सा बता दिया कि भाई 2018 का स्टार्टअप है और उसमें मैं ना ये कर रहा हूँ। लास्टली एज आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, लम्स के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था WWF के साथ, उसका मेन पार्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स था। तो मैंने लिख दिया कि भाई ड्यूरिंग माय सीनियर एट कॉलेज आई एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग प्रॉब्लम एंड डिलीवरिंग अ सॉल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम। आई अटेंडेड अ वर्कशॉप collaboration with WWF to provide solutions for a community, blah blah blah। I visited site with my team of 4 people, this और मैंने क्या किया, सारा कुछ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को हाईलाइट किया। सिमिलरली मैं बार बार ऑडिट की एग्जांपल इसे दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक ऑडिट से आ रहा हूँ तो मैं इसलिए ऑडिट की एग्जांपल इसे दूंगा कि यार
ऑडिटर की, अगर आप ऑडिटर की जॉब के लिए अप्लाई करो, लिख दोगे यार मैंने ऑडिट किया था, मैंने ये चीज़ें की थी, मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई, मैंने उनकी वेबसाइट से उठाई, मुझे कोई कंपनी में बंदा मिल गया था जो मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने वो लिख देना। Lastly, एक generic line है, I believe I can add value at training office with the experience. फिर लास्टली एक थैंक यू दे देना है पढ़ने वाले को, क्योंकि अगर जो बंदा थैंक यू तक पहुंचा है तो उसका थैंक यू बनता है क्योंकि उसने इतना पढ़ लिया। थैंक यू फॉर टाइम एंड कंसिडरेशन, माय वर्क experiences combined with my affinity to project management and consulting would make an asset to keep tracking as senior project manager. I can easily reach by email or cell phone, और मैंने लिख दिया उसको once again, sincerely मोहम्मद उमर सलीम। ये एक कवर लेटर है, ये आपको बहुत बेसिक्स है, अच्छा दिखने में है, और इसमें मैंने सारा कुछ हिट किया है। मैंने कंपनी की तारीफ की है, टू पर्सनलाइज इसके बाद मैंने बाकी कंपनी पर रिसर्च की थी, मैंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया था वो मैंने लिख दिया है। लास्टली आपके अंदर क्या कहते हैं, आपके पास जो भी मैंने क्या कहते हैं थैंक यू नोट लिखा और उसको कहा भाई खुदा हाफिज, अगर रब्ता करना हुआ कर लीजिएगा। इसके अंदर इस केस में मैंने उससे रब्ता कर लिया था, वंस अगेन इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, जो कि मेरा कवर लेटर और रेज्यूमे का पर्पस है। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स वन नीड टू वर्क ऑन, और ये बहुत मेरा लंबा सा लेक्चर था, और आई बिलीव के होपफुली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और आई थिंक इट्स टाइम कि हमारे पास एक हाफ एन आवर है हमारे पास फॉर क्वेश्चन आंसर्स, और उसके लिए मैंने जफ़ा भाई को बुलाया हुआ है। तो जी क्योंकि मैंने था कि यार थोड़ा टाइम डिवाइड हो जाएगा, so I think let's begin with question answers. One by थैंक यू one, I मैं think you can coordinate that. Yeah. So I saw Abdul Mukeet, which is a very regular participant of our OMP sessions. I saw him raising his hand a while ago. Abdul Mukeet, if you have any questions, and apart from Abdul Mukeet, anybody, if you want to ask anything, you can ask Umair and Well, Huzafa. initially I raised my hand to introduce myself as sir was asking us to do it. But after that I got a question as well. Sir, you mentioned that objectives को top पे रखते हैं. But if a person like if I consider my case, I'm a rising sophomore here at NAMS. So मैं internships के लिए apply करूँ and I'm applying in different departments, HR के लिए, marketing और sales के लिए. So क्या मेरा फिर objective time to time change होता रहेगा? Like अगर मैं I'm reaching out someone for एज अ सेल्स इंटर्न, तो फिर मैं वहां पे ऑब्जेक्टिव को चेंज करके सेल्स का कर रहा हूँ एंड देन मार्केटिंग का। सो शुड आई ऐड ऑब्जेक्टिव्स या उसको रिमूव कर दूं? अगर ऐड कर रहा हूँ तो फिर इसमें चेंजिंग का किस तरह इसको मैनेज करना होगा? मैं जवाब दूंगा, जफा तुम दोगे? तेरा माइक म्यूट है भाई। सॉरी, चलो मैं इसको आंसर कर देता हूँ। सो मुकीत, इसमें आपने ये करना है, इट्स बेटर इफ यू हैव 3 resumes और 3 different roles, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखना। If you think that objective नहीं लिखना, तो you can go with generic, but my recommendation is you should go with the 3 resumes. इसमें से बहुत ही 90% आपका सेम रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, but you know only the objective part and maybe the experience that is linking to that specific role. For example, आपने किसी सोसाइटी में मार्केटिंग का कोई टास्क आपको असाइन हुआ था and you went to the meeting या etc. उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके टॉप पे लेके आ सकते हो, ठीक है, और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव है उसको आप अपनी सीवी के हिसाब से अल्टर करके उन स्पेसिफिक जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो या इंटर्नशिप्स, ठीक है, इन योर केस। तो एंड फॉर द सेकंड रेज्यूमे सेम, और थर्ड के लिए भी इसी तरह से होगा। इससे ये होता है कि आपकी जो थोड़ी नीच है ना वो स्पेसिफिक हो जाती है, और आपका जो सीवी का जो फिल्टर आउट होके टॉप पे आने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। Thank you, Huzafa. Yeah, Thank you, I Abdul agree Mukeet. with Zafa. Just to point like last one thing के objective यार जरूरी नहीं है अब्दुल मुकीत। Objective is the thing के या तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मैंने ऑब्जेक्टिव 2 साल पहले डाला है, उससे पहले मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेस फिलर एज अ फ्रेश ग्रेड, कि अगर आपके पास यू बिलीव कि यार मेरे पास मैंने अपनी सारे चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर लिख दी है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन जगह वो जैसे मैं लीडरशिप की लाइन डाली थी ना आखिर में, उस तरह से अगर बचती है तो ऑब्जेक्टिव जरूर डाल, ठीक है। इफ यू थिंक यार मेरे पास वैसे 1 पेज बन गया है विच इज गुड इनफ, तो उसको उस तरह से लेके जाओ। एंड एज ज़फ़र सेड यू शुड हैव 3 डिफरेंट रेज्यूमेस, इसके बजाय कि तुम एक रेज्यूमे को बार-बार चेंज करते हो। Sure, sir. Thank you so much. All right. Abu Sufyan has a question. Yes.
अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैम आयशा यहाँ हैं? जी जी हैं जी। एक्चुअली मैम यस मैम आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड और मुझे जो है कुछ टाइम के लिए टीचिंग की तरफ जाना पड़ा और मुझे ना काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंटरव्यू की कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं इंटरव्यू के बाद कुछ ना मुझे चीज़ ऐसी लग रही थी कि जो मैं लैकिंग है। तो मैंने मैडम आयशा के साथ एक सेशन रखा, उन्होंने मुझे आधा घंटा जो है ना बहुत मोटिवेट भी किया और चीज़ें बहुत टेक्निकल चीज़ें जो मेरी सीवी रेज्यूमे में थी ना, जिस तरह के मुझे उनके पास जाके पता चला वो मेरे की टीचिंग एक्सपीरियंस में एक तो मैंने ऐड किया, वहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को 11 से 12 कर दिया है, या कहीं पे मैंने कोई कहीं फुल स्टॉप डाल दिया है, और बाकी इस तरह की चीज़ों का ना मैंने इनसे बहुत मैंने सीखा। और मैं उससे अगले दिन मैं बीकन ऑफ स्टीनस में इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बाद मैं जब आया तो उन्होंने मुझे 15 मिनट के बाद ऑफर भेज दी थी। तो मैं एक तो मैंने ज्वाइन, इसलिए मैं अभी आज उनका सॉरी कि मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज विजिट भी किया था ऑफिस, लेकिन वो मुझे मिले नहीं उधर। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के सेशंस वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीज़ें जो है ना होती हैं इसमें। तो आपका बहुत जो है ना वो हम शुक्रिया करते हैं। सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि कवर लेटर में आप मेंशन कर रहे थे कि आपने नाम जो है ना हायरिंग मैनेजर का वो डालें, और मुझे उन्होंने कल एक कवर लेटर मेरे से मांगा है और साथ उन्होंने ये कहा है कि आपने हैंड रिटन हमें प्रोवाइड करना है। तो ये है कि मुझे उनका हायरिंग मैनेजर का कोई नाम वगैरह नहीं, तो मैं उसकी जगह कोई जनरल टर्म डियर हायरिंग मैनेजर इस तरह का कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि अगर मुझे हैंड रिटन लिखना है तो मुझे एक ब्लैंक पेज पे लिखना है, या कि एक जो है ना वो लाइनों वाले पेज पे लिखना है, इस तरह का कोई आइडिया दे दें मुझे। जी, थैंक यू अबू सुफियान। उमैर एंड हुज़ैफा, would you like to answer that? आई थिंक इसमें सुफियान आपको पेज डजेंट मैटर, आप जो मर्जी पेज पे लिखें, कंटेंट मैटर करता है। अगर उन्होंने राइटिंग मांगा हुआ है दे डोंट केयर अबाउट कि आपका पेज कैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि डेयरिंग हायरिंग मैनेजर इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, लेकिन एज यू हैव सेड कि यू आर ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद देम, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप उनसे मांग लो कि यार कौन सा बंदा है जो मेरा कवर लेटर पढ़ेगा। उसमें लाइक इट्स अ क्वेश्चन कि यार मेरा मेरे किसने पढ़ना है, उसका नाम लिख दो तो बेहतर है। लाइक अगर नहीं है आपके पास पेपर मिलता, सो व्हाट कैन वी डू, आप डेयरिंग हायरिंग मैनेजर या डियर कंसर्न, इस तरह की जेनेरिक टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, और बस उसको थोड़ा सा क्लीन रखना, कंसाइज रखना, और आई थिंक यू आर गुड टू गो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैम आयशा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैंने 1 साल पाकिस्तान में गुजारना था और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैंने डेली एक्सपेंसेस को मीट कैसे करना है, लेकिन अचानक से मैं ऐसे हूँ और हमने कभी कैरियर ऑफिस की इस तरह की ईमेल्स को कभी लिफ्ट नहीं करवाया, तो मैंने कहा चलो यार ये करके देखते हैं, हो सकता है कुछ मिले मुझे। तो मुझे मुझे काफ़ी कुछ मिल गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलें, आई एम आयरॉनिकली ग्लैड। मैं सेशन में हमने भी अपने टाइम पे लिफ्ट नहीं कराई थी। हाँ, आई एम श्योर इसके बाद आप लिफ्ट कराना स्टार्ट कर देंगे। वी हैव अनदर क्वेश्चन बाय आमना। यस आमना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बस छोटा सा क्वेश्चन है। सो बेसिकली आई एम अ राइजिंग जूनियर, और मेरी जो सीवी है ना, स्टार्ट से ही व्हेन आई अप्लाई टू द सोसाइटीज़, तो वो मैं एचआर में ही करती थी। द इंटर्नशिप दैट आई हैव डन वो भी एचआर में ही थी। तो मेरी जो सीवी है ना, दैट इज टेलर्ड टुवर्ड्स दैट। बट ना अब भी जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो वो यही है कि क्योंकि मेरी सीवी में मोस्टली एचआर स्टाफ है, तो ऑटोमेटिकली दे वुड चूज मी फॉर दैट डिपार्टमेंट। बट मैंने ये पूछना था कि डू यू थिंक आई शुड गो फॉर अदर डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, सेल्स एज वेल, ताकि सीवी ज़रा थोड़ी डाइवर्स हो, या फिर आई शुड जस्ट स्टिक टू वन थिंग एंड उसी चीज़ में आई शुड गो फॉरवर्ड? ज़फ़र डाइवर्सिटी के किंग हैं, तो ज़रा ये सबसे अच्छा आंसर उनकी तरफ से आएगा इसके ऊपर। ओके, सो आमना इसमें ये है कि इफ यू आर वेरी वेरी लकी इफ यू नो बाय दिस एज कि आपको क्या करना है, नंबर वन। बट मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि you know the students don't know what exactly they will be pursuing in their in their professional career. तो मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन ये है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी रेज्यूमे को। आपको मार्केटिंग की साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा सेल्स की साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छा टाइम भी होता है
और आपके पास मिस्टेक्स करने के अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। बाद में जाके थोड़ा सा ना ये जो गैप होता है ये बहुत कम हो जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आपने ऑब्वियसली करियर ग्रोथ की तरफ फोकस करना है और आपने उस नीश को मोर स्पेसिफिक करना है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू जस्ट एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ राइट नाउ। आप मार्केटिंग देखो, आप सेल्स में देखो, आप HR को देखो। और मजे की बात ये है कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस दैट द वे दे वर्क राइट नाउ, ये वैसा नहीं है कि हर चीज एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चली गई हो। बहुत ही एक you can say close linked तरीके से ये लोग काम कर रहे होते हैं। So let's say if you think even in your professional career कि आपने मार्केटिंग से स्टार्ट कर दी है बट मुझे तो HR ही अभी तक अपील कर रहा है, तो वहां से आप कुछ भी ले सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। बट लेट्स से अगर आपको मार्केटिंग की ही समझ आ जाएगा, आप मार्केटिंग में ही चले जाओ, तो विच इज ज्यादा बेहतर आपके लिए। आपको एक्सेल करने में आपको उसमें आसानी मिलती है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अभी आप सोसाइटीज में इसको बिकॉज यू आर राइजिंग जूनियर, तो अभी आपके पास आई थिंक 2 साल हैं आपके पास अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा बिकॉज आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल सोसाइटी। तो मैंने 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टेस्ट करते करते आई केम टू दैट लेडर। मेरे पास 4 डिफरेंट सोसाइटीज थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं लिटरेरी सोसाइटी में था, उसके बाद फिर आई वाज इन कल्चर सोसाइटी, उसके बाद 2 मोर सोसाइटीज एज वेल। उसमें मुझे एंड पे ये समझ आया था कि मैं इवेंट्स का बंदा हूँ, मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज अच्छे कराने आते हैं। देयर यूज्ड टू बी कवाली नाइट्स इन लम्स, आई थिंक आजकल होती है नहीं। तो कवाली नाइट्स में मुझे कुछ बड़े मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, तो मुझे वहां से समझ आया था कि ऑपरेशंस इज समथिंग आई एम गुड एट, कम्युनिकेशन डिफरेंट वेंडर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड गाय व्हेन आई केम टू लम्स एज अ फ्रेशमैन। तो ये चीजें मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी बंदे के साथ निगोशिएट कर रहा हूँ या उसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसको डिफरेंट चीजों को मतलब हल बता रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड देन यू कैन जस्ट स्विच later on as well. Just to add one point from my side, in my experience मुझे था कि सप्लाई चेन में जाना है। मेरी पहली 2 या 3 इंटर्नशिप्स जो ड्यूरिंग माई लम्स टाइम, तो वो सप्लाई चेन में ही थी। बट मैंने डाइवर्सिफाई थोड़ा सा किया था इंटर्नशिप्स के टाइम पे। तो जूनियर ईयर में मैंने सबसे पहली इंटर्नशिप मिली थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सो मैंने अपना जो सारा जो फोकस रिसर्च सारा था ना, जब मैं वो करके वापस आया ना 1 महीने बाद, तो मैंने उसको ट्रैश कर दिया क्योंकि पर्सनली मुझे था यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेयर आई फिट इन। तो उसके अलावा मैंने और 2 और डिफरेंट सेल्स वगैरह में भी चेक करके देखा था। तो आई थिंक आई टोटली एग्री विद हुज़ैफा कि दिस इज द टाइम एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि लेटर ऑन स्विच करना आफ्टर 2 साल 3 साल काम करने के बाद स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज द गोल्डन पीरियड राइट नाउ। All right, so there's a question by Vania. Hi, I am a rising sophomore and I have done internships in marketing, HR, and data analytics. Now I'm confused if I want to apply for certain sales or marketing internship in future, should I mention all the experiences in CV? Doesn't it look like a person is all over the place? I agree. It does look like that. So internships हो या job हो, you should keep it relevant. Like over diversification is also bad. तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप ना, लाइक बताओ ही ना कि भाई मैंने ये भी किया था। She is totally right. All right, so Osama is asking that should the objective line be justified / aligned? Sorry, can you repeat the question? मैं थोड़ा समझ नहीं आया, like आवाज़ वो कट गई थी। पूछ रहे हैं, समझ तो मुझे भी नहीं आई। वो कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव लाइन शुड बी जस्टिफाइड या Okay, अलाइंड। अच्छा अलाइनमेंट की बात हो रही है। आई अंडरस्टैंड। बेसिकली पर्सनली आई प्रेफर जस्टिफाइड। अगर आपका जो जिस तरह मेरे रेज्यूमे था जिसमें लाइक एक ही कॉलम पर हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल चल रहे हो आप तो आपने जस्टिफाइड करना है। अगर आपके वर्टिकल कॉलम्स है ना तो फिर आपने लेफ्ट अलाइन करना है उसको। Okay, so do you have any other questions before we end this amazing session? Okay, I think you've explained pretty much everything. Thank you so much, Umair Salim and Huzaifa Zubair, for taking time Thank you out very much.
And Yeah. for this, thank you so much for this insightful session, and thank you all for your presence. Stay tuned for the upcoming mentorship sessions. Students, these are for you. We are here to help you. And if you have any queries, any concerns, you can email us at cso@lums. Lastly, I Thank would you. like to say that अगर किसी को like if you want to reach out me out, Yusra has my email and you guys can email and reach me out if you think so. Okay, तो मुझसे कोई help मिलेगी तो I'd be happy to help. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mary. Thank you, Zephyr, for such a lovely session. It was really insightful. I'm sure the students will benefit a lot from it. Yes, yes, Thank for you. sure. All right. Hopefully. Have a Thank you good day, very much. everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Please.